exclusion, social justice, subaltern communities, land reforms, democratic decentralization, identity politics, and globalization in India with specific reference to Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir state. He is recipient of prestigious UGC DART Fellowship 2014 under the एक लेक्चर UGC DART बाकी है Exchange of Sciences सोशियोलॉजी वाला program कोर्स। in Humanities and Social Sciences at Sai कौन सा था? University of Heidelberg, Germany. On the eve of Honorable PM Modi's birth anniversary, he has been felicitated with the prestigious अब आप Tilak Swachhata अब Samman आते हैं तो बता रहे हैं 2016. सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या? He has also received a gold medal for academic contribution in the field of sociology of sanitation and action अब लेक्चर sociology तो सर by जी का हो रहा है, Sulabh हो जाने के International, New बाद Delhi. He has also been felicitated with the prestigious Gita Mukherjee Memorial Award 2017 and Devang Mehta National Education Award by Business School Affairs Mumbai on 25th Silver Jubilee year in 2017. He was also invited as UGC Visiting Fellow under the UGC SAP at Department of Sociology, EBAU Central University, Lucknow 2013. He has also been a resource person for Swayam Prabha DTH channel MHRD, Government of India for NPTEL course on development of sociology in India and Rural Society in India organized by IIT Kanpur in 2018 and 1920. We are honored to have you here, sir. चलेगा। And we are looking forward to the presidential address of this valedictory session. Over to you, sir. Professor Ashish Saxena. Thank you. I think it's really nice to have the distinguished panelists over here. I can see the two distinguished vice chancellors, and I think the job for me is easy because the tone is set. And the important thing is that initially I was asked to have something else, but then I was been asked to chair because I think Principal Saab has to go for some urgent meeting. So I think chair has to speak less and listen more. I think that should be the job, but somewhere I will try to put myself different, and I will try to speak a bit also. So it will be something which is unstructured, and definitely I will try to put some insights from my experiences also. See, I think Professor Shama Rao Madam, who was nice enough to speak about the distinguished aspect of tribes, especially when she spoke about at length on different aspects of the problems and issues related to tribes. And I think Professor K.P. Singh already had spoke about certain issues which we have to see basically with regard to how tribes have to be dealt in a contemporary scenario. तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये लगता है कि कई सारी बातें हो गई हैं विकास की, और सबसे बड़ी बात हमको आज खुशी है कि हम लोग के बीच में एक बहुत महान हस्ती सर हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छे तरीके से ट्राइब्स के बारे में क्या बातें होनी चाहिए या ट्राइब का व्यू पॉइंट क्या है उसके नज़र से कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रस्तुत किया। हमें लगता है कि ये जो बातें सर ने कही बहुत सरल जरूर थी, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है, और यहीं से हम लोग की बात शुरू होती है। हम लोग कहीं ना कहीं किस प्रकार से अपने आप को जनजातीय नज़रिए से देखें, हमें लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। I think somewhere we have to see, like the title itself speaks about transforming India, और हमें लगता है जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, I think transformation is basically which is seen as a structural change. हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन को अगर कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस प्रकार के परिवर्तन की बात को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी जो बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम जनजातीय विकास के संदर्भ में बात करें, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके साथ चुनौतियाँ क्या हैं। हमें शायद ये देखने की ज़रूरत है कि हम लोग जनजाति को किस हाशिए में रखते हैं, खास करके कि अगर हम लोग क्योंकि समाजशास्त्री हैं तो थोड़ा सा समाज को एक कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से देखते हैं। आई थिंक आप लोग सब भी जानते हैं, उस तरह से हम कोई नई बात नहीं कहेंगे। जहाँ तक हम लोग समाज की बात करते हैं, हम लोग का समाज सब लोग जानते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी से भरपूर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग का समाज जो है
वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। और हम लोग मुख्यतः अपने भारतीय समाज को 3 मजबूत कड़ी के रूप में देख सकते हैं। 3 हिस्सों में हम लोग भारतीय समाज को बांट सकते हैं। पहला जो है, जिसकी हम लोग बात करते हैं, उस से जिसमें हम लोग सब रह रहे हैं, जी रहे हैं, उससे से अर्बन की बात करते हैं, नगरीय समाज की बात करते हैं। और दूसरा जो है आपका, वह ग्रामीण समाज है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली ट्राइब्स की हम लोग विलेजेस की बात करते हैं। और जो तीसरा एक स्तंभ है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जो जनजातीय समाज है। तो ये तीनों जो समाज हैं, हमें लगता है कि ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं है। दे आर नॉट इंक्लाइंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, रादर देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ हायरार्की व्हिच इज प्रेवलेंट। और हम लोग का जो ट्रेंड है देखने का या समझने का, वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है। मींस वी ट्राई टू सी दैट द डायरेक्शनलिटी हैज टू मूव फ्रॉम द ट्राइब टू द अर्बन। खास करके हम लोग अगर बात करते हैं, जो जनजातीय समाज ट्राइब्स जो हैं वो एक डोमिनेट मेंबर्स होते हैं। हम जब ग्रामीण की बात करते हैं तो प्रेजेंट्री जो है आपकी, कृषक जो है वो उसका एक मुख्य स्तंभ रहता है। और जब हम लोग बात करते हैं अर्बन की बात करते हैं तो जेंड्री की बात हम लोग करते हैं। आई थिंक ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, इन तीनों के बीच में जो एक कह सकते हैं तालमेल इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी मनोभाव और मनोदशा या विकास का जो एक स्तर है वो अलग अलग है। और हम लोग क्या चाह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग, दैट वी हैव टू स्ट्रेच एवरीबॉडी एंड पुट देम टुगेदर। I think if we say that, I think it appears to be impractical. Impractical because we are doing justice to something, but parallelly we are doing injustice to other things. हम हो सकता है कि अर्बन के साथ जस्टिस कर रहे हों, न्याय कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ हम जनजातीय संदर्भ में अगर चीज़ों को देखते हैं तो लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। खासकर क्योंकि कई सारी बातें उठी हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन में किसका फायदा है? विस्थापन बेसिकली किसका हो रहा है? और हम लोग को लगता है कि यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है कि जो मार्जिन है या जो लघु है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो बेसिकली वी ट्राई टू सी द डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू, एंड दिस फ्यू इज बेसिकली विच इज नेग्लेक्टेड, विच इज अनहर्ड। खास करके कि सबल्टन स्कूल ऑफ थॉट की बात हम लोग करते हैं, अधीनस्थ समूह की बात करते हैं। हमें लगता है कि सबल्टन वॉइसेस जो हैं उनको पूर्णतः सुना नहीं गया है या सुना नहीं जाता है। और इसके संदर्भ में कई सारी बातें हैं, खास करके कि वी ट्राई टू स्पीक अबाउट गायत्री स्पिवक's contribution, where she was trying to speak about can subaltern speak, क्या सबल्टन बोल सकते हैं। हमें लगता है कि इस तरह की बातों को हमें समझने की जरूरत है कि क्या हम लोग सबल्टन की वॉइस को, अधीनस्थ की जो आवाज है उसको क्या सुन सकते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि हमारा विकास का जो मॉडल है वो किस प्रकार से, पार्टिसिपेशन तो अच्छी बात है, पार्टिसिपेशन इज नेवर इक्वल, सहभागिता जो है समान स्तर पर नहीं है। पार्टिसिपेशन इज इन टर्म्स ऑफ एसएस, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, बट डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में क्या हम लोग पार्टिसिपेशन की बात करते हैं? आई थिंक द स्ट्रेट आंसर इज नो। हम लोग शायद पूर्णता जो है एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर, इक्वल फुटिंग की बात हम लोग नहीं करते। हम ग्रामीण और नगर के बीच के पार्टिसिपेशन को एक समान नहीं कर सकते, तो जनजाति की तो भूल जाइए। और हमें लगता है कि जो एक भूमंडलीकरण का दौर है, जिसमें एक दौड़ चल रही है, दैट द डाइवर्सिटी हैज टू बी पुट टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेट जस्ट लाइक ए सैलेड बॉल। ये जो एक संदर्भ है जिसमें कि हम लोग सजाने के लिए एक प्लेट में चीज़ों को रख दें टू शो आवर डाइवर्सिटी, बट कैन वी थिंक अबाउट दैट ऑल दीज आइटम्स आर गोइंग टू बी ऑन द इक्वल फुटिंग? क्या सभी लोग एक समान रखे जा सकते हैं? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लोग जब भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो एजेंडा जो है वो शायद अलग है। आई थिंक वी ऑल नो दैट द बेसिक कंसर्न इज मार्केट ड्राइवेबल, और जो आपका ह्यूमन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मानवीय पक्ष के द्वारा जिसको हमको देखने की या समझने की जरूरत है, वो शायद बैक स्टेज पर है। इट इज बेसिकली एट द बैक स्टेज। तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि जो बैक स्टेज है वो फ्रंट सीट पर आए, दैट शुड बी इन द ड्राइविंग फोर्स, जिसका कि हमें लगता है कि डेवलपमेंट का एक बहुत मूलभूत उसूल भी है, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। आई थिंक रॉबर्ट चैम्बर्स की बहुत प्रसिद्ध एक डेफिनेशन है
ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, क्या हम लोग अंतिम को सबसे प्रथम कर सकते हैं क्या? Can we think about the policies which are meant by or which has been devised by the tribals and they are dictating the national policies? हमें लगता है कि इस तरह का क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ प्रयास किए गए हैं। हम लोग चाहे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम लोग एसिमिलेशन की बात करते हैं, लेकिन ये सारे एक तरफे हैं, जिसमें कि हम लोग होमोजेनाइजेशन की तरफ तो बात कर रहे हैं, लेकिन हेट्रोजिनिटी की जो रेस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। तो हम लोग को ये देखने की जरूरत है, क्या हम लोग उनकी डिग्निटी को, आर वी रिटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द ट्राइबल्स? आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसर्न एंड दैट आई थिंक इज द मेन एजेंडा व्हिच वी हैव टू लुक एट, कि कैन वी थिंक अबाउट द रिटेनमेंट ऑफ द ट्राइबल्स विद देयर डिग्निटी, विद द नेचर। क्योंकि हमें तो पता है कि जब हम जनजातीय समाज की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमें लगता है कि जनजातीय समाज की जो महिला है वो काफ़ी सशक्त है। एंड देयर इज एन एविडेंसेस आल्सो, आई थिंक हम लोग के कई सारे समाज हैं, कई सारे प्रदेशों में हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर मैट्रिलिनी प्रिविलेज करती है, मातृवंशी सत्ता जो है वो प्रेजेंट है, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि द विमेन साइड इज गोइंग टू बी हैविंग द अपर हैंड, द हस्बैंड हैज टू मूव, पति को जो है या मर्द है उसको जो है औरत के घर पर जाना होता है, बच्चों का नामकरण जो है वो महिला के नाम से होता है, और उनका घर संपत्ति जो है वो महिला के नाम पर होती है। तो हम लोग को ये देखने की जरूरत है कि इस प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस है, जो विजडम की बात हम लोग करते हैं, इस प्रकार का विजडम क्या जनजातीय समाज में ऑलरेडी है और हम लोग उसको नकारते हैं। वी आर सेइंग दैट वी बिलीव ऑन पैट्रिलिनी, वी बिलीव ऑन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृवंशी समाज की हम लोग बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग, अभी तो 8 मार्च आया ही था, हम लोग सब जानते हैं 8 मार्च को तो कई सारी महिलाएं हैं। With due respect, I will say that all of us have believed that 8th March is the day where we try to celebrate the Women's Day. And this Women's Day, basically, if you try to see, I think it can be for the namesake, it appears to be good that one day is meant for women, and that is the day where we can celebrate women. But on the contrary, if you try to see the tribals, I think tribals every day they try to celebrate the women's. Either it's the question of economy, हम लोग कहते हैं कि the women is the unpaid labor, but when we try to speak about the tribal women, their unpaid is being treated as paid. उनका जो unpaid है वो paid है, क्योंकि the women is treated equally, and we basically can say that when we try to speak about there are two things. I think आप लोग सब जानते भी होंगे, ब्राइड प्राइस की बात करते हैं और एक डाउरी की बात करते हैं। डाउरी इज अर्बन एंड ब्राइड प्राइस जो होता है वो जनजातीय है। और आप इसके प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो ब्राइड प्राइस में क्या है, बेसिकली लड़के वाले जो है लड़की वाले को पैसा देते हैं, बूटी देते हैं, विच इज प्रेवलेंट इन द ट्राइबल कल्चर। डाउरी में क्या हो रहा है, लड़के वाले ले रहे हैं पैसा। So just see the transformation. I'm just trying to say that these are the things which are existing. हम transformation की जो बात कर रहे हैं वो already है, but the only way of course is to put them to the surface. हमें उसको surface पर लाने की जरूरत है, हमें उसको जो है highlight करने की जरूरत है। Similarly, we have the environmental day, we have the many other days in that sense, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि back to the nature की बात करते हैं। ये तो already prevalent है वहाँ पर, बट वी आर नेवर लुकिंग फॉर दैट एज सच। हम लोग बल्कि उनसे ट्राइबल राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स जो उनको मिले हुए हैं, हम लोग उनसे वह चीज़ों को लेना चाहते हैं। सो आप देखिए कि जिस चीज़ की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं विकास के नाम पर, और उल्टा हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को उससे डिसलोकेट कर रहे हैं। तो ये जो एक दुविधा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट्स अ डायलेक्टिक्स विच इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट, एक द्वंद्व जो है वो दिखाई देता है कि विकास में इक्वल पार्टनर्स नहीं है, देयर इज ए कंटेस्टेशन इफ यू ट्राई टू सी फ्रॉम बोथ द साइड्स। हाँ, एक तरफा देखेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दो तरफा देखते हैं तो कंटेस्टेशन दिखाई देता है। एंड वी हैव टू ओवरकम दिस dialectics. I think there are wonderful works. I think being a student of sociology, I can say Professor S. C. Dubey has spoken a length. He has a wonderful work on Kamar. The Kamar was a famous work which was typically done in the ethnographic tone,
पूरा एथनोग्राफिक तरीके से उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसको प्रस्तुत किया, एंड यू ट्राई टू सी दैट देयर इज अ मेथोडोलॉजी टू स्टडी द ट्राइब। बट एथनोग्राफिक मेथड को हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक दिस इज द थिंग विच वी हैव टू सी। हम लोग शायद उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एथनोग्राफी में हम लोग खास करके पाते हैं कि ट्राइबल्स का किस प्रकार से उन्होंने हर एक चीज का वर्णन किया है, देयर कनेक्शन विद द नेचर, their death rituals, their birth rituals, everything has been put, and it's just like एक कमेंट्री की तरह, एक मूवी की तरह आप देख सकते हैं कि हर एक सेगमेंट जो है उसको जस्टिफाई किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक कार्य है, एस सी दुबे तो काफी पुराना उन्होंने काम किया है। उसके बाद रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा एक संदर्भ की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर की बात करते हैं, आई थिंक वी कैन कोट वर्जिनिस खाका। वर्जिनिस खाका का जो संदर्भ है वो भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिकॉज ही वाज द इम्पोर्टेंट पर्सन विद रिगार्ड टू द ट्राइबल कमिटी, ट्राइबल डेवलपमेंट कमिटी। और उसके संदर्भ में उनका यही कहना था कि हम लोग जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उसको किस प्रकार से एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि ट्राइब जो है बेसिकली इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, बट जब हम बात करते हैं इंडिजिनिटी की, हम मूल निवासी की बात करते हैं, हम जनजाति की बात करते हैं, तो उसमें हमारा भारतीयकरण दिखाई देता है और जिस चीज को हम लोग ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। तो ये जो एक संदर्भ है जिसमें कि मूल निवासी जो आपका एक्चुअल है, या हम लोग बात करते हैं जनजातीय जो संदर्भ है, वो हम लोग उस दृष्टिकोण से क्यों ना देखें। हम लोग ट्राइबल का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वेस्टर्न नोशन की, हम लोग उसको इमिटेट करके अपनी चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सो समवेयर वी हैव टू सी दैट हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज, और उसके लिए जरूरत है कि एक इंडिजिनियस कह सकते हैं कि मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। खास करके इंडिजिनिटी को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, जिसमें ट्राइबल कल्चर शुड हैव द अपर हैंड। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव आल्सो टू स्पीक अबाउट that how the development should be in consonance with the requirement of the tribals. Construction of roads, they don't require, but why we are constructing the road? Because we want to encroach their area. We construct the dams because we want the electricity, we want the tourist place. So ये जो आपका एक कैसे सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं चीजों को एक दूसरे नजरिए से प्रस्तुत करता है, और हमें लगता है कि इस तरह की चीजों को हमें शायद रिवर्सल रूप में देखने की जरूरत है। सो आई थिंक सबल्टन वॉइसेस की जो बात हम लोग करते हैं, आई थिंक दिस महाश्वेता देवी आई थिंक हैज स्पोकन एट लेंथ अबाउट हाउ द ट्राइबल वुमेन हैज बीन एक्सप्लॉइटेड एंड हाउ दे हैव एनकेज्ड देयर एक्सप्लॉइटेशन। सो इस तरह के जो काम हैं जिसमें कि आपकी दबी हुई आवाज़ जो है जनजातीय समाज की, जनजातीय महिला की, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को देखने की ज़रूरत है। आई थिंक वेरी स्ट्रेट वी से दैट ट्राइब आर होमोजीनियस, बट हम लोग क्या ट्राइबल चिल्ड्रंस, ट्राइबल विमेन, ट्राइबल मैन या अन्य जो आपके सेगमेंट्स हैं, उसको क्या हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं या देख पाते हैं? हम लोग उसको एक होमोजेनियस कैटेगरी में रख के उसको कंडेंस कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी, वी हैव टू हैव द डिफरेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्राइबल्स। जैसे कि हम कहें कि ट्राइब्स जो है वो होमोजेनियस नहीं है, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग डिबेट व्हिच हैज बीन देयर कि ट्राइब्स हैज टू बी सीन इन अ हेटेरोसेंट्रिक मैनर। आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड द क्लास डिफरेंशिएशन व्हिच इज देयर इन द ट्राइब्स। आज जो रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे, हमें लगता है कि इस प्रकार के विचारों की जरूरत है, क्योंकि व्हाई दिस फैक्टर इज इमर्जिंग कि सम पीपल्स आर बीन नेग्लेक्टेड एंड सम ट्राइबल ग्रुप्स आर बीन फैसिलिटेटेड। आई थिंक वी ऑल नो द राजस्थान का जो ट्राइबल बेल्ट है, उसमें इस प्रकार से मीनाज आर हैविंग द बेटर पोजीशंस एज कंपेयर टू द भील्स एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज। सो ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है विद इन द ट्राइब्स आल्सो, आई थिंक दैट हैज टू बी रिसर्च एंड दैट हैज टू बी फोकस्ड इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ट्राइबल्स एट पार। आई थिंक वही हमने कहा कि इसको थोड़ा सा हमें को एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखने की जरूरत है। हम लोग उसको होमोजेनियस कल्चर को उठा के यहाँ से यहाँ लोकेट करते हैं, डिस्लोकेट करते हैं। आई थिंक दैट मे नॉट बी अ सोल्यूशन। आई थिंक सिंस आई हैव सम एक्सपोजर टू द tribes of Jammu Kashmir, I think one prominent tribe was the Gujars and Bakarwals of Jammu Kashmir. They are basically the nomadic tribes, जो अपने जानवरों के साथ
पशु के साथ एक लंबे रिजिस पर जाते हैं उस तरह से. Sometimes I also had an opportunity to go along with them to certain distance, and I try to find out that how much what I can say sort of bonding is there across the Gujar community. Different bridges में जो एसोसिएशन है उनका जो जुड़ाव है in spite of any other communications. और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि they are very much with the nature. They are know how to preserve the nature. और किस प्रकार से अपने जो एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है वो साथ साथ नेचर के साथ कर रहे हैं. उनके आप लाइफस्टाइल को देखिए, उनके घरों को देखिए. They are very well versed with the nature. So somewhere we have to see that this sort of culture or this sort of development pattern has to take place, जिसमें कि हम लोग उनके इंडिजिनियस मॉडल को प्रस्तुत कर सकें. I think this is what I just want to say because I said that chair has to be limited, but somewhere I felt that एक sociologist जग जाता है कहीं ना कहीं और जगना चाहिए because this is the place where we have to speak. There are many sociologists sitting over here. I can see the faces. So कहीं ना कहीं उनके साथ injustice ना हो कि सर आए कुछ बोला भी नहीं, हमारे समाजशास्त्र की नाक कटा दी. So I think somewhere we have to see that we have to have the new theorization about understanding tribes from a differential perspective, and issues are many, challenges are many, but how to overcome by putting the tribals first. I think that is the whole note which I just want to make. So with these words, I think time also may not permit because all of you are having a very hectic schedule from the morning session. We are just encapsulating the program. We are the end players. So the end players also have to go little early. Jaldi vida kare. Everybody is tired and all that as such. So I think I will not take much of your time. And with these words, I will say thanks to all of you, and especially to the Ishwar sir and the whole family of Ishwar. I belong and I am part of this. I love to come and I listen to them, and I also participate and contribute to their wisdom. And with these words, I will say thank you to all of you. Thank you.